Today we have the company of gods and saints. सबसे पहले तो मैं जो भजन के गाने वाले हैं उन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाया, उनको बधाई देना चाहता हूं. And this program is being through the internet, it is being telecasted to 47 countries, and our followers in Mexico, Latin American countries, United States, they are all watching this program. So buenos dias और सुप्रभातम. आज एक बड़ा हमें सौभाग्य मिला है. We have a great opportunity that today we are sitting in a temple with all the gods. सारे भगवान यहां पर हैं और संत भी हैं. The function of the saints is to elevate you. The functions of the saints is to make you from man to superman, so that your consciousness is elevated and you attain spirituality. संतों का काम होता है मानव की चेतना को ऊपर उठाना, और मानव की चेतना को ऊपर उठा करके वे हमें आध्यात्मिक बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं. मंदिर के अंदर, मंदिर शब्द दो शब्दों से बनता है, मन प्लस अंदर. इट मीन्स जो मन के अंदर है वहीं पर भगवान निवास करते हैं. भगवान का दर्शन करना है, मंदिर में जाओ. पर मंदिर शब्द का मतलब ही है कि अपने मन के अंदर जाओ. मन के अंदर जाओगे तो भगवान के दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे. द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्पल, विच इज मंदिर in Hindi, is to go in your mind, and when we go within ourselves we experience spirituality. Today when we see matter, we see right in the center is the nucleus. Around the nucleus all the electrons are revolving. All the atoms, they have the energy which is within them. In the same way we also have energy, and God Almighty is within us. He is in the temple, He is in mandir. So when we go within ourselves through meditation, we experience divinity. एक संत थे, संत का नाम खयाम था. वो नमाज पढ़ रहे थे, जंगल में नमाज पढ़ रहे थे, तो एक शेर आ गया. शेर उनके सामने से गुजर गया. उनका जो शिष्य था डर गया, वो तो पेड़ पे चढ़ गया. जब शेर चले गया तो वो उतरा, उतर करके अपने गुरुजी के साथ जाने लगा. थोड़े आगे गुरुजी गए तो एक मच्छर ने संत जी को काटा, संत खयाम को काटा. तो उन्होंने थप्पड़ मारा मच्छर को मारने के लिए. तो वो चेला कहने लगा कि आपके सामने से शेर गया तो आपने कुछ नहीं किया, और एक मच्छर आपकी गाल पे बैठ गया तो आप थप्पड़ मार रहे हैं. तो संत खयाम ने कहा कि जिस समय मेरे सामने शेर आया था उस समय मैं भगवान के पास था, अल्लाह के पास था, और अब मैं थप्पड़ मार रहा हूं क्योंकि मैं आदमी के पास हूं, इंसान के पास हूं. ध्यान के जरिए हम अपने आप को ट्रांसेंडेंट कर देते हैं,
अपने आप को दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। और ध्यान किसका करना है? तो अभी अभी मेरा भाई जी का आपने भजन सुनाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, भगवान के नाम का ध्यान करना। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वह जो नाम खजाना है, दैट नेम विच इज द वेल्थ, आई हैव अटेन्ड दैट by the grace of a spiritual teacher, by the grace of a guru. I am going to tell you an analogy. Here we have Ganesh Bhagwan, the Lord Ganesha is sitting here in the temple. And we all believe that Ganesh is supposed to be the remover of all obstacles. विघ्नों को दूर करना है, ऑब्स्टिकल्स को हटाना है, तो गणेश महाराज का ध्यान करो भाई। Why do we believe that Ganesh removes all obstacles? Why do we believe that? Let us go into the story of Ganesha. Parvati gave him birth. She was taking bath in the Gauri Kund in a pool. And she told Ganesha, don't let anybody enter here. So Ganesha stood there as a guard. Suddenly Lord Shiva came. Ganesha stopped him. You can't go inside. My mother is taking a bath. So Lord Shiva got upset. He said, this is my house and you're stopping me to enter my house, my own house. So they both started fighting. Lord Shiva was very, very annoyed. So with one blow of his sword, he beheaded Ganesha. When Parvati came, she saw that Ganesh is dead. His head has been chopped off. She became very annoyed. She says that you have to rejuvenate, you have to make him, you have to give him life again. You have killed my son. So all the gods, demigods, they started wondering, they started searching. Finally, when Ganesh was born, at the same time, a female elephant gave birth to one small baby. His head was taken and it was planted on Ganesha's body. This is the story that everybody tells us. But let us go into the scientific implications of the story. कि इस कहानी के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर ये कल्पना की गई है, such was the feat of medical science at that time, कि Ganesh was beheaded, but the head of the baby elephant was put on the Ganesha. आज तो हम बात करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, बाल नहीं है तो बाल लगा दिए जाएंगे, दे विल बी प्लांटेड ऑन योर हेड. बोन ट्रांसप्लांट, इफ द बोन इज क्रैक्ड, दे विल पुट अ स्टील रॉड, a steel bone. If you don't have proper teeth, they will put tooth transplant. हर चीज का ट्रांसप्लांट हो रहा है. पर आज की मेडिकल साइंस हेड ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोच सकती है. इवन नाउ विद दिस ऑल दिस डेवलपमेंट, वी कैनॉट थिंक ऑफ द हेड ट्रांसप्लांट एज गणेशा वॉज मेड लाइव. ही वॉज अवेकन्ड बाय दैट साइंस. तो इवन टू मेयरली थिंक अबाउट कि आप हेड को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इट टेल्स अस द पोटेंशियल ऑफ दैट एरा, ऑफ दैट पीरियड. Now in Ganesha there are two things. The marriage of the karma and jnana. ज्ञान और कर्म का समन्वय है. हाथी जो होता है अपनी सूंड से सूंघता भी है. सूंघना जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ द ज्ञानेंद्री, सेंसरी ऑर्गन्स. और जब वो पानी पीता है
तो वो सिर नहीं झुकाता बल्कि सूंड से पानी को चूस करके और पीता है। The elephant also takes water in his trunk. He sucks water and he puts it in his mouth. So his trunk has the function of smelling, which is sensory organs, and also working organ, that is drinking water. So it means that he has the marriage of jnana and karma. If in our life we have the marriage of jnana and karma, अगर जीवन के अंदर ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाए तो all our obstacles will be removed, हमारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। अब ये बड़ा सूझबूझ का विषय है। जब महाभारत लिखी जा रही थी तो वेद व्यास ने कहा कि आई नीड समबडी हु विल राइट इट, बिकॉज आई विल सिंपली रिसाइट, I will simply dictate. Somebody has to write everything down. So they chose Ganesha. Ganesha was invited there that Vedavyas will recite the Mahabharata and Lord Ganesha will write it. तो गणेश ने कहा कि भाई मैं लिखूंगा, I'll write it down. पर आप जो बोलेंगे आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो दुनिया बीत जाएगी, समय बीत जाएगा। इफ यू स्टॉप आई विल ऑल्सो स्टॉप। तो वेदव्यास ने कहा ठीक है, ये बात समझ में आई। पर गणेश महाराज बिना समझे हुए आप नहीं लिखेंगे। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड यू विल नॉट राइट। जब तक आपकी समझ में नहीं आए क्या बोला जा रहा है तब तक आप लिखना मत। तो सारा महाभारत समझने की चीज है। महाभारत के अंदर प्रारंभ होता है, फिर उसमें गीता आ जाती है, 18 अध्याय की गीता आ जाती है, और गीता में पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग इन द बैटल फील्ड ऑफ धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र? तो संजय उनको बताता है। धृतराष्ट्र अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। वेदव्यास ने कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, आई विल गिव यू अ डिवाइन विजन बाय विच यू विल बी एबल टू सी द एंटायर बैटल। But Dhritarashtra said कि द्रोणाचार्य जी, लॉर्ड द्रोणाचार्य, आई कैनॉट सी द डेथ ऑफ माई सन्स। मैं अपने पुत्रों का वध नहीं देख सकता अपनी आंखों से। प्लीज गिव द डिवाइन विजन टू संजय। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली। तो सज्जनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि संत लोग आपके ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, क्लीन इंडिया, उन्होंने कहा गांधी जी ने हमको आजादी दी, पर हमने गांधी जी को क्या दिया? गांधी जी को सफाई बड़ी पसंद थी। ही लाइक क्लीनलीनेस। तो मोदी जी ने कहा देश को साफ करना है, गंदगी दूर करनी है। और संत क्या कहते हैं कि जो मन के अंदर गंदगी है इसको भी दूर करना है। आखिर मन की गंदगी दूर नहीं होगी तो बाहर की गंदगी दूर नहीं हो सकती। गंगा की सफाई करनी है, सबसे पहले मन की सफाई होगी। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर वर्क। हमें ईमानदारी से अपना काम करना होगा। अगर हम खुद ही ईमानदार नहीं हैं, खुद ही हमारे मन के अंदर सफाई नहीं है, हम काम कैसे करेंगे? तो सज्जनों, मन की सफाई, मन से ध्यान करना और उस नाम को प्राप्त करना जिसको मीराबाई कहते हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा
And I will make the example very, very simple for all the people who do not know science, because ये साइंस का विषय थोड़ा आया है इसमें. मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो. मैंने नाम का जो रतन धन है, खजाना जो है, द वेल्थ, दैट इज द होली नेम ऑफ गॉड. प्रभु का नाम. अब नाम क्या चीज है? आप यहां आए हैं, आपके साथ आपका नाम भी आ गया. आप ऐसा नहीं कर सकते. यू कैनॉट डू दैट. यू कैनॉट कीप योर नेम इन द हाउस एंड लॉक इट अप. Wherever you will go, your name will be there. In the same way, जहां जहां भी भगवान है, वहां वहां उसका नाम भी है. If God is omnipresent, His name is also omnipresent. जैसे हम जहां भी जाएंगे, हमारा नाम आपके साथ जाएगा. अब वो नाम क्या है? मैं बहुत से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं. If scientifically we analyze all these words are vibration. My vocal cords are vibrating. मेरे गले के अंदर जो बोलने की ग्रंथि है, वो स्पंदित हो रही है. वो स्पंदन माइक्रोफोन में पहुंचता है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, स्पीकर्स के डायफ्राम वाइब्रेट करते हैं और आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं. अल्टीमेटली क्या है ये स्पंदन है. और इसीलिए हमारे संत कहते हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब मुझे बिरला कोई. वो कहते हैं देयर इज अ प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन विच इज मेकिंग एवरीथिंग वाइब्रेट. वी हैव वाइब्रेशन इन एटम, वी हैव वाइब्रेशन इन लाइट. लाइट इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स. The audio sound, we have vibration in the electromagnetic waves, the radio waves, the television waves, everything is vibration. But the fundamental of that is, उसका जो आधार है, वो है प्रभु का नाम, the ultimate primordial vibration. तो वो प्रभु का जो नाम है, उसको जान करके हम अपने स्वामी को पहचान सकते हैं. आपका नाम हम लेंगे, आप हमारे सामने खड़े हो जाएंगे. अभी कुछ लोगों के नाम लिए गए, फलाने आदमी मेलबर्न से आए, फलाने आदमी पोर्ट से आए. दे ऑल स्टूड अप एंड दे केम फॉरवर्ड. ऐसे ही प्रभु का जब हम नाम लेते हैं, तो प्रभु भी हमारे सामने आ जाते हैं. प्रहलाद ने प्रभु का नाम लिया तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए. जो प्रभु का नाम लेता है, वो प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है. पर हमें प्रभु का नाम लेने का तरीका मालूम होना चाहिए. वी हैव टू हैव द नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, राइट इन दिस टेम्पल, द रेडियो वेव्स आर हियर. Even the television waves are here. The Australian television companies, the Australian radio stations are transmitting all those waves. Inside the temple, outside the temple, the waves are there. But I cannot see anything, I cannot hear anything. And the reason for that is because I don't have a proper receiver. I don't have a television set. ऑस्ट्रेलिया रेडियो स्टेशन के तरंगे यहां विद्यमान हैं. ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के टेलीविजन की वेव्स यहां पर विद्यमान है, पर मैं देख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे पास टेलीविजन नहीं है. ऐसे ही जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, भगवान तो है, भगवान मंदिर के अंदर भी है, मंदिर के बाहर भी है. भगवान तो है, पर मैं भगवान का अनुभव नहीं कर पाऊंगा. अनुभव प्राप्त करने के लिए, जैसे रेडियो के प्रोग्राम को सुनने के लिए, टेलीविजन के प्रोग्राम को देखने के लिए आई नीड अ टेलीविजन सेट, आई नीड अ रिसीवर. इन द सेम वे, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस गॉड, आई नीड नॉलेज.
अब आप कहेंगे आप ज्ञान की बात कर रहे हैं? महाभारत कहती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के साथ खेले, अर्जुन के साथ खेलते थे, अर्जुन उनका सखा था, अर्जुन उनका रिश्तेदार था, ही वॉज इन रिलेशन, पर वो भगवान को नहीं जानता था। लड़ाई के मैदान में अर्जुन बिकम्स डिस्पॉन्डेंट, कायरता को प्राप्त हो जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लड़ाई करूंगा लोग मारे जाएंगे, कुल की नारियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, ऐसे रक्त रंजित राज्य का मैं उपभोग नहीं करना चाहता हूं। हे यादव, अब कृष्ण भगवान को यादव कहता है, यादव मैं भिक्षा मांग लूंगा, आई विल बेग, मैं भिक्षा मांग लूंगा पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू जिनको मारना चाहता है ये तो मरेंगे, जो संसार में आया है वो मरेगा। देयर इज अ साइंटिफिक लॉ दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम इस हॉल में आए हैं, यहां से जाएंगे भी, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला एक बांधा जाए जंजीर। जो पैदा हुआ है वो संसार से जाएगा भी। तो ये पैदा हुए हैं, ये संसार से जाएंगे भी या मरेंगे भी। अर्जुन की समझ में नहीं आया। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तू जो मारने की बात करता है यह शरीर मारा जाएगा। हम तीर चलाते हैं, तीर शरीर में लगता है, शरीर मर जाता है। इट इज द बॉडी दैट डाइज, द स्पिरिट स्टिल लिव्स। भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्ति तापो, ना शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इफ यू स्टडी द एनर्जी मास इक्वेशन इन साइंस, the energy mass equation is that energy can neither be created nor it can be destroyed. शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। इसीलिए तो हम जब माता की वंदना करते हैं तो क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम शक्ति स्वरूपा हो, यू आर ऑल एनर्जी। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। अर्जुन, उस आत्मा को तू जान, वो आत्मा सबकी राजा है और राजा का ज्ञान ही राजविद्या होता है। मुझे एक बात याद आई, अकबर का एक रॉयल म्यूजिशियन था। जैसे यहां पर बहुत सुंदर भजन गाने वाले हैं, ऐसा उसका भी भजन गाने वाला था एक, उसका नाम था तानसेन। तो बादशाह ने सुना कि तानसेन के जो गुरु हैं हरिदास जी, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने कहा, तानसेन, हम तुम्हारे गुरुजी का संगीत सुनना चाहते हैं, उनके भजन सुनना चाहते हैं। तो तानसेन ने कहा, महाराज ऐसा है, मेरे गुरुजी और कहीं नहीं गाते हैं, वो तो मंदिर में ही गाते हैं। अगर आपको उनके भजन सुनने हैं तो आपको मंदिर में ही जाना होगा। तो अकबर ने वेश बदला, वेश बदल करके दूसरे कपड़े पहन करके वो मंदिर में गया, बैठ गया। वहां उसने तानसेन के गुरु हरिदास जी का भजन सुना, बहुत प्रसन्न हो गया। जब अपने महल में लौटा तो उसने तानसेन को बुलाया, तानसेन, तुम्हारे से अच्छा तो तुम्हारे गुरुजी गाते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं गाते। तो तानसेन ने कहा, हजूर, बात ऐसी है, मेरे गुरुजी जो गाते हैं वो संसार के बादशाह के सामने गाते हैं,
और मैं केवल हिंदुस्तान के बादशाह के सामने गाता हूं। यू आर द किंग ऑफ इंडिया, आई ओनली सिंग बिफोर द किंग ऑफ इंडिया, बट माई गुरु हरिदास जी, ही सिंग्स बिफोर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार का बादशाह है उसके आगे गाते हैं। तो जो संसार की शक्ति है वो अजर, अमर और अविनाशी है, वो मरती नहीं है। अब तो साइंस भी मानने लग गई, लाइफ आफ्टर लाइफ। नाउ द साइंस इज ऑल्सो बिलीविंग दैट पर्सन्स हैव मेनी पास्ट लाइव्स। द सोल लिव्स ऑन एंड द पर्सन हैज मेनी एक्सपीरियंसेस। तो सज्जनों, यहां पर बात इंपेरिकल की है, यहां पर बात एसेंस की है, यहां पर बात उस नाम की है जो सबका सार है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब मुझे बिरला कोय। वो आदि नाम जिसको कहा राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम, हजारों नामों से जो पावन और पवित्र है, राम नाम वरानने। यहां उस नाम की चर्चा हो रही है जो इंपेरिकल है, जो सबके अंदर है। यू टेक वाटर फ्रॉम द ओशन, you take water from Ganges, you take water from Mississippi, you take water from Volga, you take water from Yamuna, any river. आप उसको एग्जामिन करोगे, you will find out that inside the water there are 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water. कहीं का भी पानी ले लीजिए, पानी में आपको हाइड्रोजन के 2 एटम मिलेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा। अभी क्या हो रहा है? पीपल आर गोइंग फॉर एको फ्रेंडली फ्यूल। वो कहते हैं ऐसा फ्यूल पैदा करो जिसपे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऐसा फ्यूल पैदा करो जिसपे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली सेफ एंड नो पोल्यूशन इज देयर। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि पानी के अंदर बिजली डालते हैं। दे पुट इलेक्ट्रोड्स इन द वाटर, एक तरफ हाइड्रोजन आएगी, एक तरफ ऑक्सीजन आएगी। जो हाइड्रोजन आती है उसके फ्यूल सेल्स बन रहे हैं, एंड दे विल बी पुटिंग द फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इन द कार, एंड योर कार विल रन बाय द हाइड्रोजन फ्यूल। जब हाइड्रोजन फ्यूल चलेगा तो देयर विल बी नथिंग बट वाटर, एब्सोल्युटली एको फ्रेंडली विद नो पोल्यूशन। तो ये हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है? पानी के अंदर से निकल रहा है, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन है। दुनिया का जो पानी है उसके अंदर H2O ही मिलेगा आपको। ऐसे ही संत कहते हैं वो जो पावन नाम है, तौरात में कहा गया, स्क्रिप्चर्स में कहा गया, गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड, he breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. भगवान ने आदमी को मट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर एक फूंक मारी और फूंक मारने से वो मट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। वो परमात्मा की फूंक क्या है? उसी को हमारे संतों ने कहा प्राण। हम लोग कुछ समय पहले वी वेंट टू एम्स्टरडैम, सत्संग हो रहा था। एक आदमी कहने लगा मैं भगवान को नहीं मानता। मत मानो, आप मुझे कैसे मनाएंगे? मैंने कहा मनाएंगे ही नहीं। जरूरी नहीं है कि आप भगवान को माने, पर आप ये बताइए आप अपने आप को मानते हैं? हाँ जी, मैं तो अपने आप को मानता हूं। तो मैंने कहा अपना मुंह बंद करो और नाक बंद कर लो। उसने मुंह बंद किया, नाक बंद की। थोड़ी देर के बाद कहता है जी मेरा श्वास घुट रहा है, आई एम सफोकेटिंग, इफ आई डोंट ब्रीथ आई विल डाई। मैंने कहा व्हाट इज दिस ब्रेथ? एंड विदाउट द ब्रेथ यू विल डाई। द ब्रेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस प्राणा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज दिस प्राणा? ये ब्रेथ क्या है? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। हम ब्रीथ कर रहे हैं, मर जाएंगे तो श्वास चले जाएंगे। तो क्या कहा? हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये श्वास निकल जाएंगे, ये आत्मा निकल जाएगी और ये तस्वीर खाली पड़ी रह जाएगी। मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं?
प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अन्नादिवास, घृतादिवास, जलादिवास, एंड वी ऑल्सो प्लांट प्राणास इनटू द स्टैच्यू, तब उसकी पूजा होती है। तो प्राण का ही महत्व है। आपके अंदर भी प्राण है, अपने प्राणों को पहचानो। हिंदू के अंदर भी, मुस्लिम के अंदर भी, सिख के अंदर भी, ईसाई के अंदर भी, एवरीबॉडी हैज द प्राणा। एंड व्हाट इज दिस प्राणा? व्हाट इज दिस लाइफ फोर्स? व्हाट इज दिस एलिमेंट वाइटल? वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये कहां से ज्ञान प्राप्त होगा? सदगुरु से मिलेगा, स्पिरिचुअल टीचर से मिलेगा। इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, वी गो टू अ मैथ्स टीचर। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, वी गो टू एन इंग्लिश टीचर। If you want to learn French, we go to a French teacher. In the same way, to learn spirituality, we go to a spiritual teacher. बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहकम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करना करती है। भिल्ली ने क्या किया? भिल्ली के पास तो झाड़ू था। भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, आओ आओ आओ, कम। ये पंपा सरोवर, दिस लेक इज वेरी डर्टी, इट इज फुल ऑफ वायरसेस, इट इज एब्सोल्युटली पॉल्यूटेड, इसको साफ करो, चरण डालो इसमें। ऋषि मुनियों ने अपने चरण डाले, बट दैट पंपा सरोवर वॉज नॉट प्योरिफाइड, साफ नहीं हुआ वो। प्रभु राम ने भी अपने चरण डाले, पंपा सरोवर साफ नहीं हुआ, क्योंकि राम के अंदर भी क्रोध था। ऋषि मुनि भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, दे वर जेलस ऑफ ईच अदर। विश्वामित्र ने तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला। दे वर जेलसी, एनिमोसिटी, नेगेटिविटी। राम जी के अंदर भी गुस्सा था कि हम राक्षसों का वध करेंगे, राक्षसों को मारना है। तो भगवान ने भिल्ली को बुलाया, भिल्ली आओ। बिल्ली ने कहा, अधम ते अधम अधम अति नारी। हे प्रभु, मैं तो बहुत छोटी हूं, अधम हूं। कहा नहीं, तुम आओ, अब तुम ही तो बची हो। तो भिल्ली के हाथ में क्या था? भिल्ली क्या करती थी? रोज सवेरे झाड़ू लेकर के रास्ता साफ करती थी। वही झाड़ू जो मोदी जी ने हाथ में पकड़ा दिया है, देश साफ करो, भारत को साफ करो, गंदगी को साफ करो। और हम जान का झाड़ू पकड़ाते हैं कि भाई अपने दिल को साफ करो, पापों को साफ करो। है ना सफाई का काम, साफ करने का काम है। तो भिल्ली के हाथ में झाड़ू था, वो साफ करती थी, ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। उसको किसी ऋषि मुनि का कोई था, ये फलाना कैंप है या फलाना कैंप है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सबकी सेवा करती थी। तो भिल्ली बहुत सच्चा है कि महाराज मैं तो अधम हूं, अधम से भी अधम हूं, नारी हूं, मुझको मत बुलाइए। भगवान ने कहा नहीं भिल्ली, तुम आओ, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा नाता तो भक्ति से, जात पात कुल की मर्यादा, जात पात से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब प्रेम से है। भिल्ली, प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो प्रेम से भगवान को भजता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और प्रेम चाहिए, वासना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, द 4 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। आर्थ, थोड़ी सी गाड़ी स्लिप होते होते बची, अपने कहा अरे भगवान, अरे तब भगवान याद आता है। प्लेन में झटके लग गए जोर से, इफ इट ड्रॉप्स मे बी 100 फीट, तो क्या अरे भगवान मर गए, बच गए, मर गए, हे भगवान। बॉम्बे में आपने देखा कितने बड़े बड़े टावर्स हैं, और कभी भूकंप आता है थोड़ा सा, सारे नीचे उतर के कहते हे भगवान, राम राम, हे भगवान, हे कृष्ण, दादा कृष्ण, सब भगवान का नाम लेने लगते। तब भगवान आता है विपदा में, संकट में। सुख में सुमरण ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। संकट में याद आता है, सुख में याद नहीं आता। अर्थार्थी दूसरा भक्त होता है, कहता है भगवान मैं पास हो जाऊं, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा।
मेरी लॉटरी निकल जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान से बिजनेस करता है, अर्थ के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए। भक्ति, अर्थार्थी, एक जिज्ञासु जो जानता नहीं है, खोज रहा है। और चौथा प्रकार का भक्त होता है ज्ञानी। और भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी और मुझ में कोई भेद नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस। तो भिल्ली को सम्मान दिया। जब भिल्ली ने चरण डाले तो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। क्योंकि एक समय एक राजा ने कहा कि मुझे ऐसे किस्म के आदमी लाओ जो अंधेरे से अंधेरे में जाते हो। ऐसा आदमी लाओ जो अंधेरे से प्रकाश में जा रहा है। ऐसा आदमी लाओ जो प्रकाश से अंधेरे में जा रहा है। और ऐसा आदमी लाओ जो प्रकाश से प्रकाश में जा रहा है। तो उनके आदमी गए, ढूंढा उन्होंने कहा महाराज ये हैं देखो। वैसे भी इनके पास ज्यादा धन नहीं था, गरीब थे। और गरीब होने के बावजूद आदतें भी इनकी खराब हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं? गंदे काम कर रहे हैं, अच्छे विचार नहीं है, पैसा भी नहीं है, मलिन लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अंधेरे से अंधेरे में जा रहे हैं। और कहा महाराज इसमें से कुछ लोग जो समय लगता है अपने को सुधारने में लगे हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा भी है, धन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है, और वो फिर गंदे काम करते हैं, तो ये प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। और जो लोग मौका भी है, समय भी है, भाव कुभाव अलख आलसों, नाम जपत मंगल दसों दिशों, कैसे भी भाव से कुभाव से भगवान का भजन करते हैं, तो वो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। हम लोग अमेरिका में गए तो कुछ लोग कहने लगे इंडियंस आर वेरी वेरी क्लेवर। मैंने कहा भाई कैसे? कहने लगे हम लोग तो मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल से नंबर मिलाते हैं, कंपनी चार्ज करती है, घंटी बजती है, हम अपना मैसेज देते हैं भाई हम पहुंच गए, वी हैव रीच्ड। फिर बातें होती हैं, एक कॉल बैठती है 200 रुपए 300 रुपए की। पर इंडियंस क्या करते हैं? मिस कॉल दे देते हैं और कहते हैं 2 दफे मिस कॉल आ गई तो समझना हम पहुंच गए। तो इंडियंस आर वेरी क्लेवर, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम, दे कन्वे द मैसेज। हमने कहा भैया यही तो बात कहते हैं हम लोग, भाव कुभाव अलख आलसों। गिव अ मिस कॉल, भगवान को मिस कॉल दो, भाव से दो, कुभाव से दो, अलग से दो, आलस से दो। भगवान का नाम सुमरण करोगे उसका भला ही भला होगा। तो ट्राई गिविंग अ मिस कॉल, कैसे भी। और भगवान कहते हैं जो मेरे लिए एक दौड़ेगा मैं उसके लिए दौड़ा दौड़ा आऊंगा। एक चाइनीज फिलोसोफर थे, once there was a Chinese philosopher, he became very sad. So his student says, Master, why you have become sad? He said that I had a dream. And in my dream, I saw that I became a butterfly. So everybody said, no problem, because now you are awake, the dream is over. Now you know that you are you. He says, no, the problem starts now. And the problem is, if in my dream I can become a butterfly, then the butterfly can also have a dream. And if the butterfly dreams to be a Chinese master, then my problem is whether I am real or whether I am the dream of the butterfly. जो चाइनीज मास्टर थे, जो चाइनीज गुरु थे, उनको एक सपना आया, सपने में वो तितली बन गए।
तो बड़े उदास हो गए। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज आप क्यों उदास हो गए हैं? उन्होंने कहा, भाई मैंने सपना देखा, सपने में मैं तितली बन गया। तो उनके शिष्य कहते हैं, महाराज आप तितली बन गए, अब तो सपना खत्म हो गया, अब तो जो आप हैं आप ही हो गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, समस्या तो अब शुरू हो गई है। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर तितली को सपना आ सकता है, मुझे सपना आ सकता है कि मैं तितली बन गया, तो तितली को भी सपना आ सकता है, और तितली को सपना आ गया कि वो गुरु बनी हुई है। तो मेरी समस्या यह है कि मैं तितली का सपना हूं या मैं वास्तव में अपने आप हूं? सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? यही राजा जनक ने कहा। राजा जनक सपने में भिखारी बन गया, सपना टूटा, राजमहल में पाता है। उसने कहा, सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? तब अष्टावक्र जी, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे, अष्टावक्र जी आते हैं और कहते हैं, राजन, ना यह सत्य है ना वो सत्य है। सपना देखने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए, चेतना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, और राज्य का उपभोग करने के लिए आपको चेतना चाहिए। चेतना सत्य है, चेतना से एक्सपीरियंस होता है। सपने का भी एक्सपीरियंस चेतना से होता है, और रियलिटी का एक्सपीरियंस भी चेतना से होता है। चेतना ही सत्य है। कॉन्शियसनेस इज ओनली रियलिटी। इसलिए हमारे संतों ने कहा, बुद्ध कहते हैं, ओम मणि पद्मे हंग, ओम मणि पद्मे हंग। मणि का मतलब होता है प्रकाश, ओम का मतलब पश्चंती मध्यमा बैखरी से जिसका उच्चारण किया जाए वो ओम है। भगवान का पवित्र नाम, वाचक नाम। और मणि माने जो प्रकाश से, जैसे सर्प की मणि होती है, हम सुनते हैं सांप आता है, मणि रख देता है, उस पे कीड़े आते हैं, उनको खाता है। तो मणि का मतलब प्रकाश होता है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। राम की भक्ति क्या है? तुलसीदास जी कहते, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कर बाती। वो परम प्रकाश है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है, न तो तभाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। इट इज ए इनर्ट स्टेट, कंप्लीटली इनर्ट स्टेट। जब पहले पहले बल्ब बना, द फर्स्ट बल्ब दैट वाज मेड, द साइंटिस्ट टुक अ वायर, they passed the current through the wire. The wire became red hot and it got burned because there was oxygen. तार के चारों तरफ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने तार को जला दिया। लोगों ने कहा, भाई ये तो रोशनी नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा, चलो ऐसा करो, ये ऑक्सीजन को हटा दो, क्योंकि ऑक्सीजन बर्न करती है। ऑक्सीजन बर्न, सो रिमूव द ऑक्सीजन। सो दे मेड अ वैक्यूम बल्ब। ए बल्ब वॉज मेड विच वॉज कंप्लीटली, देयर वॉज वैक्यूम, and they passed the electricity, the filament, the wire got red hot and started giving light. But you know, it's very difficult to have a vacuum bulb because वो टूट जाता है, चारों तरफ का प्रेशर होता है उस पर। So they said that we should find a gas which does not burn, which does not chemically be active, and they found the argon neon krypton gas. So right in all these bulbs that you see, there is the neon gas is there, the krypton gas is there, the argon gas is there, which does not react chemically. ऐसे ही अपने अंदर भगवान कहते हैं कि मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज अ स्टेट ऑफ टोटल इनर्टनेस, जहां पहुंचने के बाद केमिकली एक्टिविटी खत्म हो जाती है, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है, आना जाना खत्म हो जाता है। एवरीथिंग इज रिसाइकलिंग इन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा, यू हैव द ऑर्गेनिक वेस्ट, यू हैव द इनऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकलेबल थिंग्स, अनरिसाइकलेबल थिंग्स। सो पीपल आर रिसाइकलिंग एवरीथिंग। ऐसे संत भी कहते हैं, तुम्हारी भी रिसाइकलिंग हो रही है। लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहा नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो।
संतों ने कहा 184 से गुजरते गुजरते यह मनुष्य का शरीर मिला है, जिसको संत कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यू गो टू अ म्यूजियम, आप देखिए म्यूजियम में, देखिए हाउ मैन वॉज क्रिएटेड, कैसे आदमी इवॉल्व हुआ। तो आप देखेंगे पहले मच्छी बना, मच्छी से करते करते विकास होते होते और आदमी मनुष्य बना। पहले होमो सैपियन था, एप था। तो कैसे गुजरते 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 ये हमें मनुष्य का शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पायन जहीं पर लोक संवारा। तो ये हमें मनुष्य का पवित्र धाम मिला है, ये मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। और संत कहते हैं दूसरी चीज भी बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, विद ग्रेट फॉर्च्यून, और वो है बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जो सत्संग है, दिस कम्युनिकेशन, ये भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, विद ग्रेट फॉर्च्यून। तो दो चीजें बड़े भाग्य से हैं, मानुष जन्म और मानुष जन्म को सफल बनाने के लिए सत्संग। तो ये हमें मौका मिला है। और आपके ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक छोटा सा आश्रम है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने आप को जानने के बारे में, यहां हमारे बहुत से भूटान से यहां आए हुए हैं नेपाली भाई, उनको यहां सत्संग मिल रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने काफी संघर्ष किया और काफी संघर्ष करते करते आज यहां पहुंचे हैं। तो ये भगवान की अनुकंपा है कि आज हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है और हम अपने जीवन के अंदर भगवान की प्राप्ति करके अपने जीवन का कल्याण करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमारी वीडियो साइट भी है, उसमें हमारे प्रवचन रिले होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप समझेंगे, आपकी समझ में आएगा कि ज्ञान जानने की चीज है, ज्ञान जीवन में हमने अपनाना है, उसी से हमारा कल्याण होना है। देखिए हमारे पास आंखें हों और रोशनी नहीं है तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, पर मैं आपको देख नहीं सकूंगा, आप मुझे नहीं देख सकेंगे। वी नीड लाइट। ऐसे ही परमपिता परमात्मा को देखने के लिए भर्गो ज्योति की आवश्यकता है। और गायत्री मंत्र में कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ध्यान करना मन को एकाग्र करना है। ये जो माइंड संसार में विसिलिएट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसको फोकस करना है। तो प्रभु के नाम में फोकस करें, हृदय के अंदर प्रकाश होगा। यही मेरा एक संदेश है। तो मैं यही कहना चाहता हूं। एक समय सत्संग हो रहा था, तो एक साधु महाराज, एक सेठ जी कहने लगे, भाई सत्संग में क्यों जाते हो, सत्संग में क्या होता है? तो किसी ने कहा, भाई आइए सत्संग में बैठिए। उनको बुलाया, वो बैठ गए सत्संग में। सत्संग में सुनाया। अब उनकी समझ में तो ज्यादा कुछ आया नहीं, क्योंकि उनको किसी ने कहा बैठिए, आइए बैठिए, और सत्संग के बाद कहा जाइए भाई अब चले जाओ। तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। सत्संग से 3 शब्द लाए वो, आइए, बैठिए और जाइए। कहने लगे भाई ये सत्संग में हमको मिला। अब रात को सो गए तो उनके घर में चोर घुसा। तो उनके मुंह से निकलता आइए। चोर ने कहा, ये तो भाई ये तो जागे हुए हैं, लगता है ये मुझे रंगे हाथ पकड़ेंगे, रेड हैंडेड पकड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं बैठिए। अब चोर भागने लगा तो बोले जाइए। तो चोर को नर्वस होकर उनके पैर पकड़ लिए चोर ने। कहा महाराज मैं तो बहुत चोरी करने आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सेठ जी की आंखें खुली, देखा ये तो चोर बैठा हुआ है। अगर ये 3 शब्द मेरे पास ना होते सत्संग के, आइए, बैठिए और जाइए, तो ये मेरे को लूट के ले जाता। ये 3 शब्दों ने मेरे को बचा लिया। तो मैं यही कहूंगा कि जीवन के अंदर अच्छी कमाई करें, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। एक सेठ जी थे, तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आपकी
बहुत आपका पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है, आपकी टोटल वेल्थ क्या है, आपकी पूंजी क्या है? तो सेठ जी कहते हैं भाई मेरी पूंजी क्या है, मेरी पूंजी तो 10,000 रुपए। और टेलीफोन पर व्यापार करते हुए सेठ जी लाखों का व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी ने कहा सेठ जी आपकी आयु क्या है? तो सेठ जी तो लग रहे थे 60 साल के, पर कहते हैं महात्मा जी मेरी आयु 5 साल है, आई एम ओनली 5 years old। थोड़ी देर के बाद एक लड़का गया, दूसरा लड़का गया, पापा मैं जा रहा हूं, पिताजी मैं जा रहा हूं। तो महात्मा जी ने पूछा आपके लड़के कितने हैं? उन्होंने कहा मेरा एक लड़का है। तो महात्मा जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा सेठ जी मैंने आपसे पूछा आपकी वेल्थ क्या है, पूंजी क्या है, आप तो करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, पर आपने कहा मेरी 5 लाख रुपए मेरी वेल्थ है। तो वो सेठ जी कहने लगे महात्मा जी बात ऐसी है, मैं करोड़ों का व्यापार करता हूं, पर मैंने 5 लाख रुपए साधु संतों की सेवा में लगाए, तो जो साधु संतों की सेवा में लगाए हैं वही मेरी असली पूंजी है, बाकी तो ये संसार का संसार में रह जाएगा। बोला महाराज मैंने आपसे कहा कि आपकी आयु क्या है, आपने बताया 5 साल। बोला देखो मैं 60 साल का हूं मैं, पर 5 साल पहले मैंने भगवान का ज्ञान लिया था। साधु महाराज आए, उन्होंने ज्ञान दिया था, और जब ज्ञान का मैं भजन कर रहा हूं, ये 5 साल से कर रहा हूं, इसलिए असली आयु मेरी 5 साल है। बाकी जो श्वास, जो बाकी समय था, वो तो संसार में बिताया मैंने। बोला जी आपके तो बहुत से बच्चे हैं। आपने कहा मेरा एक बेटा है। बोला बेटे मेरे 4 हैं, पर मेरी बात नहीं मानते। कहते हैं डैडी वी हैव नो टाइम, समय नहीं हमारे पास डैडी। एक लड़का मेरी बात मानता है, इसलिए मेरा एक ही लड़का है। तो देखो बच्चों को भी चाहिए अपने माता पिता की बात को माने, आज्ञा को माने। ये हमारे भारत के संस्कार हैं। राम ने पिता की आज्ञा को माना, तो माता पिता की आज्ञा को हमें मानना चाहिए। वो हमारे शुभ चिंतक हैं। अगर पिताजी कहें आग में हाथ मत डालो जल जाएगा, तो बच्चे के लिए जरूरी नहीं कि अपने हाथ को जला के ही सीखे। माता पिता की उनके अनुभव को भी, उनके एक्सपीरियंस का भी लाभ लेना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, बेटे बहुत हो सकते हैं, आज्ञा मानने वाला पुत्र एक ही होता है, इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा मान करके हमें चलना चाहिए। और हमारे देश के अंदर यह भावना रही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय। हमारे जो ऋषि थे उन्होंने केवल अपने देश की बात नहीं कही, अपने केवल जात की बात नहीं कही, अपने फिरके की बात नहीं कही। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं यहां बैठा हूं तो मैं आप सबको देख रहा हूं। अगर मैं ऊपर चले जाऊं किसी बड़ी बिल्डिंग में तो मुझे सारा सिडनी दिखाई देगा। इफ आई टेक अ सैटेलाइट तो मुझे सारा ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। अगर मैं और ऊपर चले जाऊं तो मुझे पूरा पृथ्वी का हिस्सा दिखाई देगा, पूरा स्फीयर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से जब किसी की आत्मा उन्नत होती है, when the soul is elevated, he sees everything। ऐसे ही हमारी ऋषियों की आत्मा इतनी एलिवेटेड हो गई थी, स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो गई थी। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों। अगर मिडिल ईस्ट में लोग खुशी होंगे, सुखी होंगे, तो आपका तेल जो फ्यूल है, गैस जो है, वो सस्ता होगा, गोल्ड सस्ता हो जाएगा। वहां ज्यादा लड़ाई होगी तो तेल और महंगा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सब सुखी हो, मिडिल ईस्ट में भी सुखी हो, सब जगह सुखी हो। तो इसलिए भारत का जो संदेश है वो महानता का संदेश है। हम युग परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन कहां होना चाहिए? सबसे पहले परिवर्तन जो दुनिया में हम परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन हमारे हृदय से शुरू होना चाहिए। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। दुनिया को बदलने के लिए आपको पानी को नहीं बदलना है, दुनिया को बदलने के लिए आपको जमीन को नहीं बदलना है, दुनिया को बदलने के लिए घास को नहीं बदलना है,
दुनिया को बदलने के लिए हवा को नहीं बदलना है। अगर आप युग परिवर्तन चाहते हैं तो मानव के हृदय को बदलो, मानव का हृदय बदलेगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। वी हैव टू चेंज द हार्ट ऑफ अ पर्सन। तो सज्जनों, हम भारत से आते हैं, उस देश से आते हैं जिस देश में गंगा बहती है। और आजकल मोदी जी ने गंगा सफाई अभियान चला रखा है, गंगा को साफ करना है। गंगा धरती की धारा नहीं थी। सगर के अपने खानदान के लिए, पुत्रों के लिए, अपने पुरखों के उद्धार के लिए स्वर्ग इसको धरती पर लाया, उसने तपस्या की। इसका मतलब यह है कि हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। इसलिए कर्म करें, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो आइए, गंगा की जो भावना है, पवित्रता की भावना, गंगा कभी किसी से किसी की जात नहीं पूछती। जो उसका पानी पीता है उसकी प्यास को बुझा देती है। मुझको मॉरिशस जाने का मौका मिला। मैंने कहा भाई ये मॉरिशस क्या है? कहने लगे महाराज जी, भगवान राम ने जब मारीच को मारा तो मारीच को मार के फेंक दिया समुद्र में, ये टापू बन गया मारीच को मार करके, और इसका नाम पड़ गया मॉरिशस। अब वहां लोग चले गए, अंग्रेज ले गए उनको कुली बना के, कहा तुमको ले जाएंगे, खूब पैसा मिलेगा। मिला तो कुछ भी नहीं, कुली बन गए बेचारे, स्लेव्स बन गए। तो उनके पास पैसा नहीं था, गंगा स्नान नहीं कर सकते थे, तो वो बोतल में गंगा जल लाए और वहां एक तालाब है, गंगा तालाब, उस तालाब में पानी डाल दिया और कहा यहां गंगा जी आ गई। तो जब भावना पवित्र होती है, कहा बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो वहां पर गंगा प्रकट होकर गंगा तालाब में अब लोग वहां जाके जो है डुबकी लगाते हैं और वहां पूजा करते हैं। तो यह भावना, गंगा का मतलब हम कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग को भी धरती पर ला सकते हैं, यह है गंगा का संदेश। तो आइए, अभी वंदे मातरम की बात कही गई, निश्चित रूप में भारत माता की जय होनी चाहिए। और हम ही नहीं जय बोले, सारी दुनिया जय बोले। जिस समय दुनिया के अंदर अध्यात्म का प्रचार होगा, सारी दुनिया बोलेगी भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआशीर्वाद। ओम स्वस्ति अस्तु, सबका मंगल हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए हम